इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा डिस्कस हो गया था, उसमें किसी को डाउट है? सर फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉलिंग स्केल आप बताए थे I प्लस EA/2, बस वहां तक हुआ था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हो गया था ना? हाँ, और पॉलिंग स्केल आप स्केल बता रहे थे, उसमें सिर्फ फॉर्मूला बताए थे उसका I प्लस EA/2 वाला, बस। हाँ, तो पॉलिंग स्केल में बेटा अपने को ज्यादा कुछ करना नहीं है। पॉलिंग मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैलकुलेशन अपने सिलेबस में नहीं है, बट वो बता दिए है, इन केस किसी टेस्ट सीरीज में आ जाए तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। टेबल में बेटा और क्या टॉपिक बाकी रह गया है, किसी को कुछ आइडिया? पीरियोडिक टेबल में और क्या बाकी रह गया बेटा, किसी को कुछ आइडिया है? चलिए, अब करेंगे हम लोग शील्डिंग इफेक्ट। अब करेंगे शील्डिंग इफेक्ट। देखो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। ये बेटा अपना न्यूक्लियस है, ठीक है, और लेट से ये अपना एक ऑर्बिट है या ऑर्बिटल है, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन खड़ा है, so we can say this electron is being attracted by positive charge of the nucleus. Let's say यहाँ पर z number of electrons है, z is the number of electrons, sorry, z is the number of proton inside this nucleus, and there is one electron out here. So I can say this electron is attracted by z proton over here. Now let us say there is one more atom, identical atom. यहाँ पर भी बेटा z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन खड़ा है। दोनों में बेटा अभी हम लोग बोलेंगे अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल है, क्योंकि एवरीथिंग इज आइडेंटिकल। नाउ इमेजिन इन दिस there is one more inner orbit and we have one electron over there. बेटा होगा क्या कि यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स और यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स अब इक्वल नहीं है। Attractive force in this case will be slightly less compared to attractive force in this case. The reason is because of the presence of inner electron. Because of the presence of inner electron, the force experienced by this electron will be slightly lesser compared to this. So we will say this electron is screening this electron या shielding this electron. ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको लोअर कर देता है। दिस फेनोमेना is known as shielding effect or screening effect. This phenomena is known as shielding effect or screening effect. पहले आप डायग्राम दोनों को ड्रॉ कीजिए, ठीक है, दोनों डायग्राम पहले आप लोग ड्रॉ कीजिए। आप लोग थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा।
Now what will be the definition? Definition simple है, the decrease in nuclear attractive force या decrease in the attractive force exerted by the nucleus, decrease in the attractive force exerted by the nucleus on the valence shell या outermost shell due to presence of inner electron. बेटा इसके ऊपर फोर्स क्यों कम हो गया? बिकॉज न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन चला आया. सो द डिक्रीज इन force exerted by nucleus on valence electron, on valence due to presence of electron in inner shell, due to presence of electron in inner shell. This phenomena is known as shielding effect or screening effect. Shielding effect or screening effect. ध्यान से समझिएगा, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से शील्ड हो जाता है. ठीक है. Now let's say there are Z proton in this, Z protons in this. So I can say this electron is being attracted, this electron is being attracted by nucleus and repelled by these electrons. यहाँ पर आपस में रिपल्शन है, फिर ये लोग आपस में रिपेल कर रहे हैं. ठीक है, ये भी आपस में रिपेल कर रहा है. तो प्रेजेंस ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रॉन causes repulsion of this electron. So I can say net force will be attractive, attraction from nucleus minus inter-electronic repulsion minus inter-electronic repulsion. This net force is known as, this net force is known as effective nuclear charge. Effective nuclear charge, commonly denoted by Z star.
Now Z star will be written as attraction force from nucleus. What was the attraction force from nucleus? Simply Z. What is Z? Number of protons in nucleus. Number of protons in nucleus minus interelectronic repulsion. This interelectronic repulsion is same as shielding effect. Is same as shielding effect. Symbol for this is sigma. So we will write Z star, that is effective nuclear charge, is equal to Z minus shielding effect. Now other name of shielding effect is screening effect. Other name of shielding effect is screening effect. अदर नेम ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट. बताए थे ना यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट. ठीक है. नेट फोर्स इज इक्वल टू अट्रैक्शन माइनस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. नाउ shielding effect or screening effect. Shielding effect is not exerted by, sorry, but shielding effect is not equal for all electrons. Shielding effect is not equal for all electrons. Now what do we mean by that? Shielding effect is not equal for all electrons. Now what does that mean? That simply means the electrons in s orbital and the electron which are in p orbital. Let's say I have two electrons, an electron in s and electron in p. So s orbital will have more shielding effect compared to p. P will have more compared to d, and d will have more compared to f. This is the order of shielding effect. This is the order of shielding effect. Let's say this is nucleus. Okay, and this is an electron. Let's say I have two more electrons. This electron and this electron. Let's say this is from 2p orbital. मैंने 2p टाइप बनाया नहीं है, बस ऐसे ही सर्कल बना के 2p बोल दिया तो मानना है 2p है. And let's say this is 2s orbital. So s orbital will cause more inter-electronic repulsion compared to this. Yeah, in a nutshell, this electron will guard nucleus more compared to this electron. अब बस आपको इतना से ध्यान रखना है, जो आउटर से सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन खड़ा है ना, उस इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियर का बेटा अट्रैक्शन फोर्स पूरा नहीं पहुंचता है. इस इलेक्ट्रॉन के पास बेटा इस न्यूक्लियस का सारा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं पहुंचता है. द रीजन इज ये दोनों गार्ड करते हैं, या बोलेंगे रिपेल करके गार्ड करते हैं. These two electron will not allow all the force to be exerted upon this electron. बस इसको मान लीजिए ये आपका लाइट का सोर्स है. बेटा लाइट का सारा सोर्स, लाइट जितना भी प्रोड्यूस होगा यहाँ पहुंचेगा.
उससे थोड़ा कम यहाँ पहुंचेगा, उससे थोड़ा कम यहाँ पहुंचेगा। रीजन इज ये लोग शैडो बनाएंगे ना बेटा, ऐसा मान के चलिए। जितना दूर होता जाएगा उतना आपका, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट? नहीं, चलिए देखिए। अब ये ऑर्डर याद रखना है। नेक्स्ट आपको ये भी रखना है, डी एन एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। DNF orbital have poor shielding effect. Means an electron in DNF, they do not guard the nucleus from valence electron very well. DNF वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा शैडो एरिया नहीं बनाते, बहुत ज्यादा शैडो क्रिएट नहीं करते। इसका देखो हम लोग को बहुत सारा एक्सेप्शन क्रिएट होगा। पीरियोडिक टेबल में DNF ऑर्बिटल विल क्रिएट टू मेनी एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है बेटा, तो यहाँ पे बेटा आपका हाइड्रोजन है, यहाँ हीलियम है, फिर लिथियम, बेरिलियम, फिर यहाँ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। यही है अपना। फिर आएगा पोटाशियम, कैल्शियम। फिर यहाँ आता है बेटा गैलियम, जर्मेनियम, टिन। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर आपके कुछ लोग आते हैं। यहाँ पर कौन आता है बेटा? 3D आता है। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये सारे लोग आएंगे। मैं यहाँ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। तो विच विल हैव ग्रेटर एटॉमिक रेडियस, बोरॉन और एल्यूमिनियम? जल्दी से बताइए, विच विल हैव लार्जर एटॉमिक रेडियस? कोई तो बताइए बेटा। एल्यूमिनियम, 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 बोरॉन। बोरॉन क्यों बेटा दीपान्विता बेटा? डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मैं एक अच्छा सा कुछ खोज रहा हूँ। एक एक मिनट बेटा, मैं कुछ खोज रहा हूँ, मिल नहीं रहा है।
अभी भी नहीं मिला है। चलिए कोई बात नहीं, इसी से काम चलाना होगा। ठीक है। यहाँ दिख रहा है बेटा आपको एटॉमिक रेडियस का टेबल। देखिए लिथियम इज 152, सोडियम 186, 227, 248, 265। आपका काम है बेटा पता करना कि कहाँ पे एक्सेप्शन आया है। Down the group atomic radius increases. हम्म, हम्म, बोलिए बेटा। सर एल्युमिनियम और गैलियम में। ठीक है, सही है बेटा। प्रॉब्लम है, आप देखिए जरा ध्यान से। बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम है ना। 85 से लेके 143, ये तो इंक्रीज कर गया। यहाँ देखिए 143 से 135 हो गया, 143 से 135। So as we went down the group, atomic radius instead of increasing has decreased. Then from gallium to indium it is increasing. कितने से इंक्रीज किया है बेटा? 30 से इंक्रीज किया है, 31 से इंक्रीज किया है। गैलियम और इंडियम के बीच में डिफरेंस कितने का है? 166 माइनस 135 है। ठीक है, तो 31 का डिफरेंस है। इंडियम और थैलियम में देखिए तो कितने का डिफरेंस है? ओनली 5 का डिफरेंस है, ओनली 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो वापस आते हैं इस पे। ठीक है, नियॉन और नाइट्रोजन, ठीक है बेटा, उसके अलग रीजन है। चलिए मैं जो बता रहा हूं बेटा यहाँ पर आपको, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल देखेंगे आपको बेटा टेबल अब थोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, रफ बनाइए टेबल। हम्म, कहाँ प्रॉब्लम आया? एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में प्रॉब्लम आया। बट आपसे पूछेगा एल्यूमिनियम और गैलियम में गैलियम का साइज बड़ा छोटा क्यों है? बोरॉन से एल्यूमिनियम इंक्रीज एक्सपेक्टेड था कि नीचे आने पे इंक्रीज करेगा,
बट यहाँ पर डिक्रीज किया है, तो बेटा यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होगा। यहाँ आपका टाइटेनियम होता है, टाइटेनियम इज 3D1, फिर वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, कितने हो गए, 3, एक मिस कर दिए, स्कैंडियम यहाँ मिस किए थे, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, कॉपर, जिंक। बेटा यहाँ से यहाँ तक इसमें डी में इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पर भी डी में, 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 सारे में डी में इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स इन 3D। उसके बाद गैलियम आया। तो बेटा मैंने अभी बताया था डी ऑर्बिटल हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, मींस जो गैलियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है दैट इज 4p1। गैलियम का बेटा 4p1 था। 4p1 को बेटा ये 10 इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल, दे आर नॉट वेरी गुड एट शील्डिंग। Since they are not very good at shielding or screening, hence the electrons, 4p electrons of gallium, they are attracted well by the nucleus. They are attracted well by the nucleus. As a result, उनके ऊपर अच्छा खासा फोर्स लगता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर मोस्ट वाले या वैलेंस वाले, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन सारे उसके पास चले आते हैं, न्यूक्लियस से क्लोजर हो जाते, थोड़े पास चले आते। एज अ रिजल्ट गैलियम का जो एटॉमिक रेडियस है इंक्रीज करने की जगह थोड़ा सा माइनर अमाउंट ऑफ डिक्रीज करता है। तो जब भी आपको एल्यूमिनियम और गैलियम में कोई भी एक्सेप्शन, सिर्फ रेडियस का नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सेप्शन है, एक एक करके करेंगे, आगे के चैप्टर में आते रहेंगे। जब भी आपको एल्यूमिनियम और गैलियम के बारे में कोई भी प्रॉब्लम पूछेगा, आंसर एक ही देना है, बिकॉज ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स। आपसे पूछेगा व्हाई गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, तो आपको बोलना है एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में 10 इलेक्ट्रॉन्स 3D में है, और हम लोग को मालूम है 3D में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। एज अ रिजल्ट एल्यूमिनियम और गैलियम में गैलियम छोटा है। एल्यूमिनियम और गैलियम के बारे में जब भी पूछे कोई भी एक्सेप्शन, आंसर देना है इन दोनों के बीच में ये लोग आते हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन्स इन 3D जो आते हैं इनका शील्डिंग इफेक्ट वेरी पुअर है, तो इस कारण से गैलियम छोटा हो जाता है, ठीक है। चलिए ऐसे करके एक एक करके और भी एक्सेप्शन देखेंगे। याद है ना लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर बोरॉन के बारे में कोई भी एक्सेप्शन पूछ ले तो आंसर एक ही देना है, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन। याद है ना लास्ट क्लास में किए थे कि अगर यहाँ पर कोई भी आपसे पूछे व्हाई फ्लोरीन बिहेव लाइक दिस, तो फ्लोरीन का स्मॉल साइज, व्हाई ऑक्सीजन बिहेव लाइक दिस, वेरी स्मॉल साइज। उसी तरीके से एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये दोनों, ये रिस्पॉन्सिबल है, 10 इलेक्ट्रॉन्स इन 3D रिस्पॉन्सिबल। उसी तरीके से बेटा सिलिकॉन और जर्मेनियम के बीच में कभी पूछता नहीं है। मान लो कभी भी आपसे सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में कोई एक्सेप्शन पूछ लिया, आपको आंसर फिर से देना है बिकॉज ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स इन 3D ऑर्बिटल्स। समझ में आया? इसको हम लोग लिखते कैसे, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, बिटवीन aluminum and gallium there are 10 in 10 intervening electrons in 3D orbital. Since d orbitals have poor shielding effect, orbitals have poor shielding effect,
Hence gallium is smaller than aluminum. Hence gallium is smaller than aluminum. नेक्स्ट, अच्छा अभी और बाकी है। चलिए यहाँ देखिए, खत्म नहीं हुआ है बेटा। यहाँ पे 3D है तो यहाँ पे 4D 1 से लेकर 10 होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा। यहाँ पे है हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेटा आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर बेटा 4p आएगा, 4p 1, सॉरी, यहाँ पर आएगा 4p 1 से लेके 6। यहाँ पर कौन आता है बेटा? 5p आता है 1 से लेके 6। यहाँ आएगा 6p 1 से लेके 6, और लास्ट में आएगा 7p 1 से लेके 6। बेटा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सीजियम बेरियम के बाद बेटा यहाँ पर जगह बचता है 4f का और 5f का, बचता है ना। अब बेटा आपको जब ध्यान रखना है, कभी भी गैलियम और इंडियम के बीच में कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगा, बिकॉज गैलियम और इंडियम के बीच में कुछ नया नहीं हुआ है। यहाँ 3D आया है, यहाँ 4D है, तो गैलियम और इंडियम के बीच में आपको कुछ नया देखने को नहीं मिला। बट इंडियम और थैलियम के बीच में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। क्या नया देखने को मिला? 4f ऑर्बिटल पहली बार आया है बेटा। यहाँ 4f है और यहाँ 5d है, तो 5d इज नॉट न्यू बट 4f इज न्यू। 5d is not new but 4f is new. So again many times we will see some exception between indium and thallium. A very common exception between indium and thallium is oxidation state. For example, what is the oxidation state of aluminum? Aluminum is +3, and it is also expected from aluminum to have +3 oxidation state, because aluminum electronic configuration will be neon. (3s2 3p1). It is expected from aluminum to exhibit +3 oxidation state, because these two electrons will be lost, these two and this one. So total of 3 electrons are lost by aluminum, and aluminum becomes aluminum 3+. Same is the case for boron. Boron also exhibit +3. Aluminum also exhibit +3. Gallium also exhibit +3. Indium also exhibit +3, but thallium will exhibit +1. So why thallium is exhibiting +1 oxidation state? For group, for element in this group to exert +1 effect, only one electron will be lost. Now it would be very much clear, this is 3s2 3p1, 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1. This is 6s2 6p1. So if I look at the electronic configuration of thallium, so this will be 6s2. I am not writing xenon.
I am simply writing the last electrons. So how can thallium exert या exhibit +1 oxidation state? Thallium can exhibit +1 oxidation state if only this electron is lost and this is not lost. Now question is why this will not be lost? This will not be lost because these 6s2 electrons, they are tightly held by the nucleus. Now why they are tightly held? Because nucleus is exerting a good amount of force on 6s2 electron. But why nucleus is exerting? 6s2 is very far from the nucleus. Because 4s orbitals, they do not guard nucleus very well. They have poor shielding effect. As a result, the 6s2 electron of thallium is not allowed to leave, and they are strongly held by the nucleus. This phenomena will force thallium to exhibit +1 oxidation state. इसमें किसी को डाउट? नहीं है? चलिए देखते हैं। अब देखिए बेटा, पीरियोडिक टेबल याद होने का फायदा क्या होता है? देखिए मैं बता रहा हूं, इंडियम था, इंडियम के नीचे थैलियम है, टिन है, टिन के नीचे लेड है, एंटीमनी है और उसके नीचे बिस्मथ है। बेटा इसमें था आपका NH2NP1, इसमें है NH2NP2 और इसमें है NH2NP3। इसमें किसी को डाउट है तो मैं फिर से एक बार बना दे रहा हूँ। क्या? जस्ट मिनट, ठीक है। चलिए फिर से एक बार कर दे रहा हूँ, आप लोग को याद नहीं होगा टेबल अभी तक अच्छे से। देखिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थालियम, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिर्फ आखिरी वाले का है NH2NP1। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3 +3 +3 +3 +1। अब ध्यान रहे बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीपल हो सकते हैं। बाय मल्टीपल आई मीन मोर देन वन। गैलियम बेटा ये वाला दोनों तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करता है, NH2 और NP1 तीनों लूज करता है, तो +3 दिखाएगा। बट ध्यान रहे गैलियम के पहले 3d इलेक्ट्रॉन्स है, 3d ऑर्बिटल था आपका, ठीक है, 3d 1 से लेके 10। तो गैलियम का ये दोनों इलेक्ट्रॉन कभी कभी जाने से मना कर देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तीनों चला जाएगा, बट कभी कभी एक जाएगा, ये दो बच जाएंगे, तो क्या दिखाएगा? +1 दिखाएगा। बट ध्यान रहे 3 + 3 इज 90% एंड +1 इज 10% ओनली, या इवन लेस देन 10%, 1%, 2%। यहाँ पे 4d है बेटा, ये भी +3 और +1 दिखाएगा। अगेन +3 इज वेरी कॉमन, +1 इज लेस कॉमन। बट थैलियम के पहले है 5d 1 से लेके 10 एंड वी हैव 4f 1 से लेके 14। This will exert +1 because only this will be lost and they will refuse to be they'll refuse to leave the atom. However, they are refusing, but we know by supplying sufficient amount of energy, I can remove this electron as well, but that will be very, very, very unstable process. So
thallium plus 1 will thallium plus 1, thallium plus 3, both are feasible, but thallium plus 1 will be 90% and plus 3 will be only 10% of the compound. So अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो स्टेबिलिटी में अगर पूछा जाए आपसे तो आपको लिखना है थैलियम प्लस 1 इज मोर स्टेबल देन थैलियम 3 प्लस। क्वेश्चन आएगा व्हाई InCl3 exists but TlCl3 does not. Why InCl3 exists but TlCl3 does not? तो आपको बोलना है थैलियम प्लस 1, sorry, thallium plus 3 is not stable. Thallium plus 3 is not stable. Now, why thallium plus 3 is not stable? Because these two electrons are refusing for thallium to leave. ठीक है। नेक्स्ट बेटा, जब भी कुछ नया ऑर्बिटल आएगा एक्सेप्शन आना चालू होगा। बेटा यहाँ पे प्लस 3 मोर स्टेबल देन प्लस 1 है, प्लस 3 मोर स्टेबल देन प्लस 1 है, यहाँ प्लस 1 मोर स्टेबल देन प्लस 3 हो जाएगा। 4f इलेक्ट्रॉन आ गया है। ठीक है। नाउ एनीथिंग दैट इज बिकॉज ऑफ 4f, कोई भी प्रॉब्लम आता है अगर 4f के कारण, यहां बताए थे ना बेटा 4f है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए 4f के कारण, कुछ भी हो, 4f ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट आया, तो अभी के लिए आपको सीधा लिखना है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज मेड बाय लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन? अभी के लिए, आपके लिए अभी के लिए बस 4f ऑर्बिटल है। क्या करता 4f ऑर्बिटल आपको अभी नहीं मालूम है। ठीक है, आपको सोचना भी नहीं है। अभी खाली इतना समझिए, कोई भी प्रॉब्लम कभी भी अगर 4f के कारण कहीं पर आपको दिखा तो आपको बताना है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल। 4f ऑर्बिटल का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, इसलिए ऐसा हुआ। या शॉर्ट में बोल देना है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है इसलिए ऐसा हुआ। लंबा चौड़ा स्टेटमेंट होगा कि 4f ऑर्बिटल्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, उसको रिप्लेस करना है ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, यहां आपको क्या लिखना है? थैलियम प्लस 3 is unstable because thallium exhibit +1 oxidation state and not +3 oxidation state. +3 oxidation state. Now, why thallium do not exhibit +3 oxidation state? Thallium do not exhibit +3 because to exhibit +3, it will have to lose these two electrons. Now, why they are not lost? Because these two electrons are strongly held by the nucleus. Why they are strongly held by the nucleus in case of thallium? Because there are 14 electron in 4f and 4f electrons have poor shielding effect. समझ में आया? ये पूरा लंबा चौड़ा आपको लिखना है। ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। +1 oxidation and not +3 oxidation ड्यू टू
inert pair effect. Due to inert pair effect, thallium plus 3 is unstable because thallium exhibit plus 1 oxidation state and not plus 3 oxidation state due to inert pair effect. Now question is, what is inert pair effect? ये होता है बेटा आपका थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आपको बोलना है ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज हुआ और ये वाला नहीं लूज हुआ, नॉट लॉस्ट। व्हाई दे आर नॉट लॉस्ट? नॉट लॉस्ट बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल। उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया आपसे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। उसका शॉर्ट फॉर्म आ गया आपसे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। हम लोग तो इनर्ट पेयर इफेक्ट कर रहे हैं ना, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट को अब हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो सिंपल सी बात है, इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या लिखना है? द रिफ्यूजल ऑफ 6s2 इलेक्ट्रॉन, द रिफ्यूजल ऑफ 6s2 electron to participate in bond formation because they are strongly held by the nucleus due to क्या बेटा? Poor shielding effect of 4f orbital, shielding of 4f orbital। अब देखो इतना लंबा चौड़ा लिखे हैं, तो यहां आपको लिख देना था, इसके जगह आपको सीधा लिखना था लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। न्यूक्लियस ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन is called inert pair effect, is called inert pair effect. The refusal of 6s2 electron to participate in bond formation because they are strongly held by the nucleus due to lanthanide contraction is called inert pair effect. तो अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ थैलियम में दिखेगा? तो थैलियम में नहीं दिखेगा, सिर्फ थैलियम का है बेटा, उसके बाद लेड है, उसके बाद बिस्मथ है। थैलियम का होता है 6s2 6p1, इसका है 6s2 6p2 और इसका है 6s2 6p3। तो बेटा थैलियम किसका फैमिली से है? थैलियम आपका बोरॉन फैमिली से। बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये आपका कार्बन फैमिली से है और ये आपका नाइट्रोजन फैमिली से है। बोरॉन बेटा +3 दिखा रहा था, कार्बन +4 दिखाता है, नाइट्रोजन +5 दिखाता है, बट बेटा थैलियम आपको +1 दिखाएगा, लेड आपको क्या दिखाएगा और बिस्मथ आपको क्या दिखाएगा? कार्बन में बेटा ये दोनों चारों इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो +4 हुआ, लेड में बेटा ये दोनों इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा तो ये +2 दिखाएगा और ये +3 दिखाएगा। देखिए मैंने सारा एक ही बार में सॉल्व कर दिया है।
आपसे पूछेगा विच इज मोर स्टेबल, PbCl2 और PbCl4, खुद से पता कीजिए विच विल बी मोर स्टेबल, PbCl2 और PbCl4, खुद से पता करके बताइए। सही है बेटा, सुभायन ने आंसर दिया, आयुषी, सुस्मिता, आदित्य सही बता रहे बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, PCl5 exist but BiCl5 does not। आंसर मालूम है? PCl5 में फास्फोरस इज एग्जिबिटिंग +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, चलेगा। BiCl5 में बिस्मथ +5 नहीं चलेगा, बिस्मथ ने इनर्ट पेयर से अफेक्टेड है, बिस्मथ जो है +3 से ऊपर नहीं जाता है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये अपना स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया। स्क्रीनिंग इफेक्ट के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो भी हम लोग देख लिए हैं। अब केमिस्ट्री है ना बेटा, इतना जगह, अब स्क्रीनिंग इफेक्ट तो बहुत जगह लगता जाएगा, बट होपफुली हम लोगों ने लगभग सारा जो स्क्रीनिंग का जो प्रॉब्लम था वो सारा सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए एक और देख ही लीजिए, ये एनसीईआरटी में कुछ तरीके से दिया भी है। आयनाइजेशन एनर्जी पे देखते हैं हम लोग, आयनाइजेशन एनर्जी of group 13। Now what is group 13? Boron family। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। Now we all know down the group ionization energy will decrease. Down the group ionization energy will decrease. So ionization energy of boron is maximum and that is 801 kilojoule per mole in group 50, 13, sorry. That of aluminum is expected to be slightly lower and that is 577 kilojoule per mole। मोल है वो, ठीक है ना। गैलियम, देखो अब गैलियम का बेटा बढ़ना, आप लोग सोचोगे एटॉमिक रेडियस कम हो गया तो बढ़ जाना चाहिए, बेटा गैलियम में क्या होगा कि आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। अब ये केमिस्ट्री है, ठीक है, अब ऐसा है तो है, अब इसमें रूल नहीं लगाना है आपको, बस ये होता है, ये है तो है, आपको वैल्यू याद नहीं रखना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये दिया रहेगा, एक्सप्लेन करने बोलेगा, तो ऑब्जर्व कर लिए ना, यहाँ से यहाँ ऑलमोस्ट कांस्टेंट। मैंने क्या बोला है, क्या आंसर आएगा? यहाँ पर जो जो था, यहाँ पर कौन था बेटा? 3D ऑर्बिटल, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D ऑर्बिटल। देखो
4f के लिए हम लोग लैंथेनाइट बोलते हैं, 3d के लिए हम लोग कोई टर्म नहीं है, आपको सीधा लिखना है 3d कॉन्ट्रैक्शन, 3d कॉन्ट्रैक्शन। 4f के लिए लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, 3d के लिए वो है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, यहां से यहां 558। देखो ये आपको डेटा याद नहीं रखना है, बार बार बता रहे हैं। फिर यहाँ आएगा 589। आपको डेटा दिया रहेगा, आपको डेटा जो दिया हुआ है उसको एक्सप्लेन करने बोल सकता है। तो आपको बेटा डेटा से मतलब है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आया, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है और यहाँ पे 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। अब इसको बढ़ना था, घटा नहीं, ये वो, आप बेटा ये केमिस्ट्री है, यहाँ पे एटम जैसा बिहेव करता है, हमें वैसा मानना पड़ता है, एक्सेप्शन यहाँ पे चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट बिकॉज ऑफ पुअर 3d कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पे इंक्रीज बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, बस इतना बोलना है आपको। चलिए नेक्स्ट आपसे बेटा एक चीज पूछेगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, होपफुली ये सब कोई को अभी तक पता होगा, ये थोड़ा पहले मुझे बता देना था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ना व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए नियॉन सोडियम प्लस फ्लोरीन माइनस मैग्नीशियम 2 प्लस, they all are isoelectronic. Sodium has 11 electrons, so sodium plus will have 10 electrons. Magnesium has 12 electrons, so magnesium 2 plus will have 10 electrons. Fluorine have 9 electrons, so fluorine minus will have 10 electrons. कौन मिस हो गया? Neon. Neon has 10 electrons. So all of them have same number of electrons. So they are isoelectronic species. तो आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते क्या है, आपसे बेटा इनका रेडियस पूछता है। मतलब क्या है समझिए, आपसे पूछेगा अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, arrange following in decreasing order of atomic radius. ठीक है, ऐसे करके दिया रहेगा।
तो बेटा आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में अट्रैक्ट करते हैं. ग्रेटर इज द अट्रैक्शन, more is the greater is the attraction between electrons and nucleus, smaller will be size. समझिए बात को. अगर मैं मैग्नीशियम 2+ को ड्रॉ करने का सोचता हूं, तो मैग्नीशियम 2+ में न्यूक्लियस में बेटा 12 प्रोटॉन है. कैसे? एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12 है. नाउ इस Mg2+ में चारों तरफ 10 इलेक्ट्रॉन्स है. This will be my Mg2+. Coming to F-, will have 9 proton and 10 electrons. Then come to aluminum 3+. Aluminum 3+ will be 13 proton and 10 electron. Oxygen 2-, 8 proton and 10 electrons. So all atom they have 10 electron each. Yeah, all ion they have 10 electron each. Now in which case the attractive force is maximum in this case. 13 proton are attracting 10 electron. So smallest size will be of aluminum 3+. And oxygen 2- will be largest because 8 proton has been asked to keep hold of 10 electrons. So oxygen 2- will be largest. Sorry. Then comes F-, then comes Mg2+, then comes Al3+. This is the order of atomic radius. किसी को डाउट है बेटा यहाँ तक?
हो गया? कोई डाउट किसी को? चलिए ठीक है। अब एक आप लोग कीजिए, नंबर बी। सिंपल है बेटा, इसमें कुछ करने को रखता नहीं है। ये कैल्शियम 2+ है, ठीक है। सुष्मिता बेटा आपका सही है। सॉरी। सर आंसर आ गया। ठीक है, रुकिए बताइए मत अभी। ठीक है सर। ठीक है बेटा, बड़ा सिंपल सा था। यहाँ पर भी आपको देखना है तो 80 कितने आने, 20 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएगा, यहाँ भी 20 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी 20 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी 20 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन देम। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन काउंट करना है, उसके बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा मेरे हिसाब से 21 प्रोटॉन्स है, यहाँ पे आपका 17 प्रोटॉन्स है, यहाँ पे आपका 22 प्रोटॉन है, और यहाँ पे आपका 19 प्रोटॉन्स है। यही आया सबका प्रोटॉन्स। तो सबसे छोटा जो होगा या सबसे बड़ा होगा आपका फास्फोरस 3-, देन 19 Cl-, देन K+, देन कैल्शियम 2+। ठीक है। तो संपूर्ण बेटा आपका भी सही है, ऋतिक बेटा आपका भी सही है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन काफी आएंगे, ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है वो सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एक चीज एक्सप्लेन क्या मतलब बताया नहीं था, लोअर क्लासेस में पता होगा, नहीं पता हो। मैंने बताया था लोअर क्लास में, बट सारे तो लोअर क्लास में यहाँ नहीं थे, तो इसलिए दोबारा से एक छोटा सा चीज है जो एनसीईआरटी में है। nomenclature of elements with more than 100 atomic number, 9th में मोस्ट प्रोबेबली कराए थे, ठीक यस है। हाँ, चलिए याद है। तो
फिर से करा दे रहे बेटा जो लोग नए हैं। देखिए, अगर कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, लेट से एलिमेंट का एटॉमिक नाम है x और इसका एटॉमिक नंबर है 107, तो अभी बेटा मान लेते हैं किसी का 10 हाइट, मान लेते हैं कि आपका सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो 11 है उसका एटॉमिक नंबर और नाम है सोडियम। तो सोडियम और 11 नंबर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, जबकि हम लोग को पता है कि ऑर्गेनिक में रिलेशन होता है नाम में। फॉर एग्जांपल मैंने इथेन बोला तो मतलब है 8 हो गए, ठीक है, इथेन जैसे ही बोलेंगे तो 8 हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी है 11 12 13 14 के लिए भी अपने पास नंबर होता है, बट यहाँ पर कोई एलिमेंट x है 107, तो इसका नाम क्या होगा, उसका नाम 107 से आएगा, ठीक है। ये कैसे आएगा वही हम लोग को चेक करना है। तो सबसे पहले जब भी 0 हो तो उसको नील बोलना है, 1 होगा तो उसको अन बोलना है, 2 होगा तो क्या बोलना है बेटा, बाई बोलना है, 3 होगा तो ट्राई, 4 हुआ तो 4 हुआ तो बेटा, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। देख, हाँ शुभायन बेटा बोलिए, बोल सकते बेटा, अनम्यूट कर चुके सबको। शुभायन बेटा आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप तो बोलिए तो। चलिए, तो बेटा ट्राई के हाँ बाद, 4 होगा क्वाड। हाँ ट्राई के बाद ध्यान रखेंगे टेट्रा नहीं आएगा। टेट्रा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे यूनिक चीजें होनी चाहिए, बी है, यू है, एन है, तो NUBT, मतलब यहाँ पे टेट्रा करेंगे तो TT कॉमन हो जाएगा, जो अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्वाड, ठीक है। 5 हुआ तो पेन पेंट, 6 हुआ तो हेक्स, है 7 होगा तो बेटा हेप्टेन सेप नहीं होगा, सेप सेप्टेन होगा। हाँ सेप बहुत बढ़िया, दिस इज ऑक्टेन एंड दिस ऑक्टेन। एन, ठीक है। चलिए, अब बेटा 107 को लिखने के लिए 1 के लिए अन लिखना है। आप, नील। हाँ बेटा रुकिए बेटा, जब हाँ पूछेंगे तो बताइएगा। सेप। ओके सर। ठीक है, ध्यान से सुनिए। 1 के लिए बेटा आपको अन लिखना है, 0 के लिए यहाँ से नील लिखना है, 7 के लिए आपको यहाँ पे ये टी लगेगा, ठीक है, सेप्ट होता है, सेप्ट हुआ, अनिल सेप्ट, फिर लास्ट में IUM लगा देना है। हर किसी में बेटा IUM आपको प्रीफिक्स की तरह लगाते जाना है। ये IUM जैसे हर चीज में ना, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम सब में प्रीफिक्स है, तो अनिल सेप्टियम। अब देखो इसका सिंबल क्या होगा। 1 के लिए बेटा अन का यू उठाना है, 0 के लिए नील लेकर आए थे तो एन लेके आना है, और 7 के लिए सेप्ट आया था तो एस आएगा। तो इसका सिंबल हो जाना है UNS। यू कैपिटल होगा, एन स्मॉल होगा, एस स्मॉल होगा, UNS, और नाम हो जाएगा अनिल सेप्टियम। ओ माय तो आस्ते बोलो। चलिए, इसका बताएंगे Y124। सही है बेटा, आदित्य बेटा सही है, सुष्मिता आपका भी सही है, आयुषी आपका भी सही है, सुभायन आपका ठीक है, टाइप कर दीजिए बेटा। चलिए, तो अन 1 के लिए, 2 के लिए बाई, आगे सिंबल देख रहे हैं, और 4 के लिए क्वाड, तो UBQ सिंबल हो गया, नाम हो जाएगा अन बाई क्वाड यम।
बस अनबाइक्वाडियम, सिंपल सा है बेटा। रूल ये है कि कोई भी नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ, मान लेते एलिमेंट है 132 एटॉमिक नंबर है, ठीक है, इसका 132, तो 132 डिस्कवर हुआ एटॉमिक नंबर का एलिमेंट, और मान लेते आपने किया, तो आपने 132 का एटम डिस्कवर कर दिया है और आपने किया, ठीक है, तो आप बेटा इसका नाम नहीं रख सकते, इसका नाम हो जाएगा 132 के हिसाब से यू टी एन पी, ये नाम हो जाएगा अनट्राइबियम, ठीक है, ये नाम हो जाएगा। फिर ये नाम कब तक रहेगा, ये नाम करीबन 6-7 महीने 8 महीने तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक मीटिंग होता है IUPAC का, IUPAC का मीटिंग होगा, फिर इस 132 को क्या कहेंगे वो IUPAC डिसाइड करेगा, ठीक है, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप खाली UTB बोल सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोल सकते। क्लियर है ये? तो ये इस काम के लिए पीरियोडिक टेबल में बेटा आपको ये वाला भी दिख जाता है, कभी कभी आपको इसका प्रॉपर नाम दिख जाता है, प्रॉपर नाम इसलिए दिख रहा है क्योंकि IUPAC ने उसका नाम रख दिया होगा। क्या फायदा है इसका? कोई खास फायदा नहीं है बेटा, ये बस जानने के लिए है कि एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है तो ये एक रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसका एक फायदा है, मतलब अपने काम का नहीं है, फायदा ये है ना कि बहुत सारे लोग कर क्या रहे थे ना कि एटम मिला भी नहीं, देखो बेटा एटॉमिक नंबर 132 का एटम आज नहीं तो कल मिलेगा, नहीं मिलेगा तो लैब में बन जाएगा, लैब में तो हम लोग हर एटम बना ही सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, कोई एटॉमिक नंबर बोल दिया कि वो एटॉमिक नंबर 125, और उसको मैंने अपने ऊपर अपने अपना अपना नाम दे दिया, अपने कंट्री का नाम दे दिया, अपने किसी साइंटिस्ट का नाम दे दिया, या हो सके तो अपना ही नाम दे दिया, ठीक है, या अपने पेरेंट का नाम दे दिया। तो ऐसे सारे साइंटिस्ट बीच में क्या करने लगे थे, सबको अपना अपना एक एलिमेंट बोलते थे कि ये मैंने ढूंढ लिया है, ये रहा उसका नाम, और उसका नाम पॉपुलर करा देते थे। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए IUPAC ने ये रूल लगाया है कि 100 के ऊपर जो भी होगा उसका नाम तब तक यही माना जाएगा जब तक IUPAC डिसाइड नहीं कर रही है, ठीक है। IUPAC क्या है बेटा, फुल फॉर्म पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये काम क्या करती है बेटा, केमिस्ट्री में बेटा बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है, सारे रूल्स यही बनाती है। फॉर एग्जांपल बेटा क्रिकेट के एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, 7 बॉल क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ICC ने डिसाइड कर दिया है, ठीक है। बाउंड्री के बाहर चले जाने पे बॉल पे 4 रन मिलता है, 5 रन क्यों नहीं मिलता है, ICC ने डिसाइड किया है, ठीक है। तो मीथेन को मीथेन क्यों बोलते हैं, ICC ने बोला इसलिए हम लोग भी बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ रूल्स है, नोमेनक्लेचर है जो ICC ने डिसाइड किया है। इससे फायदा ये होता है ना कि आपको वही पढ़ाया जा रहा है जो अभी के डेट में फ्रांस के किसी एक स्कूल में नोमेनक्लेचर पढ़ाया जा रहा होगा, सच दैट कि आप और फ्रांस वाला वो जो है जो अभी स्कूल में अभी वो भी होगा, कल को फ्यूचर में कहीं पर मिले किसी लैब में या किसी कंपनी में एक जगह काम कर रहे हो, तो बेटा दोनों जब इथेन की बात करें ना तो इथेन का मतलब एक ही हो, ऐसा ना हो वो बोलेगा नहीं मेरे स्कूल का इथेन और आपके स्कूल का इथेन, ऐसा नहीं होता है ना, फिर काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा साथ में, ठीक है। तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी रखना है, ठीक। नेक्स्ट बेटा सुष्मिता आप पूछ रहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डेल्टा क्या होता है, बेटा डेल्टा समझिए बात को, मैंने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दिखाया था कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में बेटा इलेक्ट्रॉन विल बी पुल मोर टुवर्ड्स क्लोरीन, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन बेटा कुछ ऐसा रहेगा, ये मान लेते इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ये बड़ा हो गया मतलब इधर ज्यादा है, तो बेटा एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन is being pulled towards chlorine, this will acquire some small negative charge and this will acquire small positive charge, so this means small negative and this means small positive,
आपका बेटा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ है, पूरा इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना चला गया क्लोरीन के पास। क्लोरीन के पास बेटा थोड़ा देर के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन विल नॉट स्पेंड इक्वल टाइम विथ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। Electron will be spending more time with chlorine because chlorine is more electronegative. So electron cloud will be pulled towards chlorine. As a result, chlorine will acquire some negative charge. Some negative charge, not -1. So how to denote small negative? Small means delta. So delta minus means small. If I have to say anything small, means delta. यही होता है साइंस में, डेल्टा का मतलब स्मॉल होता है बस। आपको बोलना है डेल्टा ऑफ ए मतलब स्मॉल ए, डेल्टा ऑफ एक्स स्मॉल एक्स, तो डेल्टा ऑफ प्लस स्मॉल पॉजिटिव। ठीक है। हाँ बेटा कल टेस्ट होगा। ठीक है। डेल्टा बेटा क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। गुड मतलब गुड होता है, ठीक है। एक अच्छा लड़का है यार, बहुत अच्छा लड़का है, आप उसको वेरी गुड और गुड बोलेंगे ना, तो यहाँ पर ही बेटा आपको डेल्टा ही बोलना है, स्मॉल बोलना है। और आपको वेरी वेरी स्मॉल बोलना है तो स्मॉल स्मॉल हो गया, दिस बिकम्स वेरी स्मॉल। ठीक है, और वेरी वेरी स्मॉल करना है, 3 बार डेल्टा लगा लीजिए, वेरी स्मॉल हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज एनी नंबर विच इज स्मॉल। अब स्मॉल किसको बोलते हैं बेटा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है स्मॉल कहाँ पर क्या है। ठीक है, चलिए। और कोई डाउट बेटा इस चैप्टर में? टेस्ट का टॉपिक तो बेटा मोल कॉन्सेप्ट है। 1 घंटे का टेस्ट होगा, मार्क्स से क्या मतलब है? चलिए ठीक है बेटा, और कोई डाउट तो नहीं किसी को? Sir, we didn't do, so we will also give. क्या क्या? पीरियोडिक टेबल का मॉड्यूल कब मिलेगा? अपलोड नहीं हुआ है? सर प्रिंटेड वाला अपलोड हुआ कि नहीं प्रिंटेड वाला देखे तो नहीं रखा है। हुआ है बेटा, आपको तो बोले थे कि उसके बाद से तो कुछ लोग आके ले भी गए हैं, पीरियोडिक भी ले गए और ठीक है केमिकल जी, बॉन्डिंग भी ले गए हैं। कुछ लोग को मिला भी ठीक है होगा ना सर। बेटा? यस सर। हाँ वही बोला, कुछ लोग को मिला भी होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ से नहीं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट